here we learn so many things relating to our Adhyatmik. Adhi is inside, Atmik is soul. What is there in the soul, we'll come to know so many things in it. We all know what is there in the physical body. We are well versed with the physical structure, organs, nerves, etc. But what is the power that is making us to run this physical body? We do not know. So here we have come here to know exactly what we are, what is our identity, how we can improve our willpower, concentration levels. So it's all relating to the mind. Okay? If we conquer the mind, we can conquer the whole world. So what is mind, what is brain? You might be knowing everything about the brain. We also get brain tumor. But have you ever come across by saying mind tumor? Nobody gets mind tumor. So what is this mind all about? We'll come to know today. Okay? So our speaker, PBK Amol Bhai, has come from Delhi. He is a High Court and Supreme Court advocate. Also, he has done his mechanical engineer. Okay? And here he gonna tell you about this. The topic is comparative religions between Hinduism and Islamism. Okay? Today, I am very much glad that your college management has invited Adhyatmik Vishwavidyalaya for delivering this spiritual seminar. We will see today what is spirituality, what is self-realization, what is our true identity, and what are the similarities between different religions. We don't know, and because of that, all the religions are fighting with each other. So, before starting the session, as Madam told you, we'll start the session with meditation for 2 minutes. So, straight सबको बैठना है. मैं आपको ऐसी मेथड बताऊंगा जो अभी लाइफ में आपको हमेशा काम में आएगी. You have to focus in the middle of the forehead. It is called as Bhukuti. The point of light is blinking here, just like a star in the sky. You have to imagine. Don't remember any person, any friend, any relative, any parents, your teachers. Don't remember anybody. Completely disconnect from the world, detach from the world, just like a Bairagi, sadhu, sannyasi. In complete detachment from the world for 2 minutes only. I am not saying that you live abandon your family and college for 2 minutes. Just concentrate here. I am a point of light situated in the middle of the forehead. Many thoughts will start coming into your mind. Don't run behind those thoughts. Only one thought. I am a point of light situated in the center point of the forehead. Don't close your eyes. Just like Shiv Shankar. Deep meditation stage. He is not closing his eyes completely. Control the thoughts of your mind. पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है गुदली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, समझा राह भूले थे कहाँ थे हम, राह भूले थे कहाँ थे हम। प्यार का तेरी
प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास है हम। ये कौन सी बूंद है? ये ज्ञान की बूंद है। परमात्मा जो है, अल्लाह जो है, ईश्वर जो है, ही इज द ओशन ऑफ द नॉलेज, ही इज द ओशन ऑफ द लव, ही इज द ओशन ऑफ पीस। और हमारे पास शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, प्यार नहीं है, सच्चा प्यार, सच्ची शांति, तो हम उससे मांगेंगे कि हमें एक बूंद दे दो सागर में से। ये मीनिंग था उसका। अगला जो स्टैंजा था उसमें क्या बोला? पंछी है, मन रूपी पंछी, द बर्ड विच इज लाइक अ माइंड। पंख है कोमल, पंख मतलब विंग्स आर वेरी सॉफ्ट। आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, मतलब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी मच हाई। बहुत लंबी छलांग लगानी है, लंबी उड़ान लगानी है, लेकिन पंखों में इतनी ताकत नहीं है और आंखें धुंधली है। तो ये गाने का एक सार था। आपने अच्छी तरीके से इसका मीनिंग समझा होगा तो आपको हंसी नहीं आएगी, है ना? So today's topic is regarding spirituality. What is the meaning of spirituality? आज जो मॉडर्न साइंस है, सब लोग हिंदी से कंफर्टेबल है? किसी को प्रॉब्लम है हिंदी की? आज जो मॉडर्न साइंस का जो एरा है, इसमें आज हम मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ जो यूज कर रहे हैं हम, उसके बाद ये वीडियो गेम्स, तो इन सबको यूज करते हुए हमारी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है हमारा, ये राइटियस बन रहा है या अनराइटियस बन रहा है? श्रेष्ठ बन रहा है या भ्रष्ट बन रहा है? भ्रष्ट बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे, आप तो बड़े हो गए, यू आर अबव 18 आई थिंक, तो छोटे छोटे बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है। और ये जो साइंस का डेवलपमेंट है, ये घर घर में मोबाइल आए, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल आए, इसका पॉजिटिव यूज भी है लेकिन मिसयूज भी ज्यादा हो रहा है। ये सारा लास्ट अभी 10-15 इयर्स में ये डेवलपमेंट है। जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था तो आई डिडंट हैव एनी मोबाइल and my other friends, colleagues, they also didn't have mobile. Our teachers, professors, they didn't have mobile. तो अभी ये जो फास्ट टेक्नोलॉजी और साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है, साइंस का जो डेवलपमेंट है, एक तरफ हमें लग रहा है कि हमारे पास कंफर्ट्स और लाइफ लग्जरियस बन रहा है, प्रॉब्लम्स जो डिसीजेस है ये सॉल्व हो रहे हैं। पहले जो बीमारियां थी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, लोग ऐसे ही मर जाते थे। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि साइंस जितना डेवलप हो रहा है उतने डिसीजेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं? पहले कम बीमारियां थी, अभी बीमारियां ज्यादा हो गई। मॉडर्न साइंस कंस्ट्रक्शन कर रहा है, दूसरी तरफ बड़ा डिस्ट्रक्शन कर रहा है। वो डिस्ट्रक्शन एकदम माइन्यूट लेवल पे है, एकदम सटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे, और वो डिस्ट्रक्शन हमारे माइंड एंड इंटेलेक्ट का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। Am I right? माइंड और इंटेलेक्ट का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है और बाहर की दुनिया में भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फर्स्ट एटम बॉम्ब was invented by which scientist? Robert Oppenheimer in year 1945. Have you heard the name? Robert Oppenheimer has invented first atom bomb in year 1945 in Second World War. It was also exploded on the two cities of the Japan. Name of the cities Hiroshima and Nagasaki. तो ये जो एटम बॉम्ब है, ये हमारे घर के डेकोरेशन के लिए है या हमारे घर के विनाश के लिए बना हुआ है? विनाश के लिए बना हुआ है। तो ये प्लेनेट जो है अर्थ, वसुदेव कुटुंबकम, ये मेरा घर है। और आज 1945 के बाद आज छोटी सी छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है, एटॉमिक मिसाइल्स है। तो साइंस जो है, मॉडर्न साइंस हमें फायदे भी दिए तो हमें
डिस्ट्रक्शन की तरफ भी लेके जा रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अभी रशिया यूक्रेन की वॉर 2 साल से चल रही है, इजराइल पैलेस्टाइन, उसके बाद लेबनान ईरान, इनके बीच में वॉर चल रही है। सीरिया अभी बंद हो गई, इजराइल पैलेस्टाइन। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, आप अगर जो बहुत स्कॉलर्स है और जो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स है, दे आर सेइंग दैट इस एंटायर वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ा हुआ है। सो दिस इज द सिचुएशन। ये बाहर की सिचुएशन है। धर्म आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। और भारत के अंदर देखेंगे तो जातियों में भी झगड़े, देयर आर डिस्प्यूट्स इन कास्ट आल्सो। राज्यों के बीच में झगड़े हैं, समाज के बीच में झगड़े हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में क्या झगड़ा है? द डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु इज रिगार्डिंग, जनरल नॉलेज कम है, कौन सा वाटर? कावेरी वाटर, कावेरी रिवर्स वाटर। कौन कावेरी नदी का पानी कौन यूज करेगा, इसके ऊपर झगड़ा है। तो मनुष्य ने, इंसान ने इस दुनिया में जमीन भी बांट ली, आकाश भी बांट लिया। पाकिस्तान बोलता है कि मेरी एयर स्पेस से भारत का विमान, भारत का जेट नहीं उड़ेगा। उसने हवा भी बांट ली, आकाश भी बांट लिया, जमीन भी बांट ली। 2 कंट्रीज को डिवाइड करने वाली लाइन होती है, पता है ना, बॉर्डर लाइन। तो जमीन भी बांट ली, आकाश भी बांट लिया और पानी समुद्र भी बांट लिया। आज चाइना रेड सी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है और वहां अमेरिका और चाइना का डिस्प्यूट चालू हो गया है, मतलब समुद्र का भी बांट लिया। तो ये बाहर की लड़ाई चल रही है। अभी हमारे अंदर की लड़ाई देखते हैं हम। हमारे अंदर भी लड़ाई चल रही है, नहीं चल रही है? राम और रावण की युद्ध, अच्छाई और बुराई की युद्ध, शैतान और दूसरा क्या होता है? इंसान के अंदर जो अच्छाई है और शैतान, ये दोनों के बीच में डेविल और गुड एंड इविल की जो वॉर है, ये हमारे अंदर चल रही है या नहीं चल रही है? हमारे जीवन में, लाइफ में जब क्वेश्चन आता है, कोई सिचुएशन आती है, हमको राइट एंड रॉन्ग के बीच में, राइट एंड रॉन्ग के बीच में हमें अगर चॉइस करनी है, गुड एंड बैड के बीच में अगर चॉइस करनी है, तो हमारी जो इंटेलेक्ट है ये क्या चॉइस करती है? गुड एंड बैड के बीच में बैड चॉइस करती है। अभी गुड चॉइस कर रही है किसी की, और राइट एंड रॉन्ग के बीच में रॉन्ग चॉइस कर रहा है। तो जो इंटेलेक्ट है, जिसको हम अक्ल बोलते हैं या बुद्धि बोलते हैं, ये बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर। क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर। बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर। और जो मन है, मन ख्यालात, मन है थिंकिंग पावर। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के थॉट्स मन में आते रहते हैं। अगर आपने अपने मन को चेकिंग किया, होमवर्क देता हूं मैं आपको, आज रात को जाके, रात को सोने से पहले आप अपने माइंड को चेकिंग कीजिए, सवेरे से लेकर रात तक मेरे माइंड में किस तरीके के थॉट्स आए, वेस्ट थॉट्स और निगेटिव थॉट्स ज्यादा आए या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आए। आप अपने आप को चेकिंग कीजिए, एनालिसिस कीजिए, असेसमेंट कीजिए और अपने डायरी में, जो प्राइवेट डायरी है उसमें सेल्फ अफर्मेशन, उसमें लिखिए भगवान को कि इतने इतने नेगेटिव गंदे गंदे थॉट्स मेरे माइंड में, वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं। तो ये माइंड और इंटेलेक्ट जो है, इसकी क्लींसिंग जो है, प्यूरिफिकेशन जो है, ये जरूरी है या नहीं है? जैसे एक बॉडी, और बॉडी को चलाने वाली जो पावर है उसको कहते हैं रूह या आत्मा। ये जो शक्ति है इनविजिबल है, ये विजिबल है। तो बॉडी इज मॉर्टल, शरीर विनाशी है, और आत्मा जो है इमॉर्टल है, अजर अमर अविनाशी है। तो ये जो शरीर है, ये शरीर का जो भोजन है वो हम शरीर को रोज देते हैं। फूड ऑफ द बॉडी
हम रोज देते हैं, शरीर का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन जो आत्मा का भोजन है, जो रूह का भोजन है, वो हम देते नहीं है। वो क्या है? आत्मा का भोजन कौन सा है? रूह के लिए क्या भोजन होता है? आपके ख्यालात, आपकी अक्ल, आदतें, मन जो है उसमें थॉट्स आते हैं, बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है, और संस्कार माना आपके हैबिट्स है। आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके अच्छे संस्कार बनते हैं, आप बुरे कर्म करते हो तो आपके बुरे संस्कार बनते हैं। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था अभी? फूड ऑफ द सोल क्या है? रूह का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? नॉलेज। वेरी गुड। और कोई आंसर? पॉजिटिव थिंकिंग। आत्मा का भोजन है ज्ञान, और दूसरा भोजन है ध्यान, मीन्स मेडिटेशन। मेडिटेशन और ज्ञान। ज्ञान कौन सा ज्ञान? पैरामेडिकल का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान, या स्पिरिचुअल नॉलेज? कौन सा ज्ञान? स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी ज्ञान। क्या बोलते हैं उसको? रूहानी इल्म। तो ये जो ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिट मीन्स आत्मा, दिस इज द प्राण शक्ति, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। जब नर्स है, पेशेंट को देख रही है, आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स है, तो पेशेंट जब चला जाता है तब क्या बोलती है नर्स? डेड बॉडी को लेकर जाइए। डेड बॉडी को लेकर जाइए, उस व्यक्ति का नाम नहीं लेती है कि राहुल को लेकर जाइए, नहीं बोलती है नर्स, बोलती है डेड बॉडी को लेकर जाइए। तो ये जो डेड बॉडी इसलिए है क्योंकि रूह या आत्मा चली गई, उसकी वजह से वो डेड बॉडी है। तो मेरी जो असली आइडेंटिटी है, मेरी जो परमानेंट आइडेंटिटी है, वो मैं भूल चुका हूं। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग प्योर एंड परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. ह्यूमन मीन्स human skeleton of bones and flesh, or being means energy. Energy can neither be created nor be destroyed. Only one form of energy can be converted into another form. वैसे ही आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, that is energy. वो एनर्जी चली जाती है तो बॉडी डेड है. Brain is also part of the body. Brain is also one of the organ of the body. अगर कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपका सेंट्रल प्रोसेस सीपीयू है, प्रोसेसर, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो प्रोसेसर काम करेगा क्या? आत्मा नहीं है तो ब्रेन काम करेगा क्या? तो कोई बोलता है, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हु इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, तो जवाब आता है ब्रेन. दिस इज रॉन्ग आंसर. द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी इज सोल. Now, how to do the meditation? सोल जो है ये इनविजिबल है, तो हम इसको कैसे ध्यान करें, इसका ये क्वेश्चन है. एंड वेयर इट इज रिसाइडिंग? इट इज रिसाइडिंग इन द मिडल ऑफ द फोरहेड. यहाँ पे इसको बोलते हैं उत्तमांग. जो भारत की कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग जो है यहाँ पे टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं. तो जो भारत के जो सेजेस है, ऋषि मुनि है, इन्होंने ये बिंदी लगाना और टीका लगाने का ट्रेडिशन शुरुआत किया, क्योंकि इनको ये पता चला कि मनुष्य जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है. मनुष्य अपने आप को क्या समझ रहा है? आई एम अ बॉडी, आई एम अ फिजिकल बॉडी. बट ही फॉरगॉट दैट I am a soul, I am not a body. ये जो कॉन्शियसनेस है, सोल कॉन्शियसनेस, वो भूल गया और अपने शरीर को सब कुछ समझ बैठा, और उसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी विल पावर, उसकी आत्मशक्ति, मन शक्ति, उसकी रूहानियत कमजोर हो चुकी है. इसकी वजह से आज किसी ने
थोड़ा सा भी कॉलेज में या घर पे हमें गुस्सा किया तो आपको रोना आता है। कई कई ऐसे हैं, कितने भी इंटेलेक्चुअल है, छोटी सी प्रॉब्लम में सुसाइड कर देते हैं। आज आपने सुना रहेगा बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील लोग, साइंटिस्ट, दे आर कमिटिंग सुसाइड, सेलिब्रिटीज, बॉडी बिल्डर्स। क्यों? उनके पास तो नॉलेज है, उसके बावजूद सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्या नहीं है उनके पास? आत्मज्ञान, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो नहीं है। क्योंकि आज की जो हमारी पढ़ाई है, जो कोर्सेस है, आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं पढ़ाई जाती। हम जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर्मल एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन। और दूसरा है स्पिरिचुअल एजुकेशन, इट इज रिगार्डिंग द सोल, हाउ टू इंक्रीज द पावर ऑफ द सोल। तो द सोल इज सिचुएटेड एट दिस सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। जो चीज दिखती नहीं है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया और पंखा चालू हो गया, फैन, तो कैसे चल रहा है? वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को आंखों से देखा है, लेकिन हम उसके एग्जिस्टेंस को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से, हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर कंक्लूजन पे आते हैं, फिर हम एक्सेप्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इन द सिमिलर मैनर आत्मा का रियलाइजेशन, आत्मा का एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आप अगर रोज अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, 4 o'clock उठकर हाफ एन आवर, ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है यूनिवर्स में। उस समय यूनिवर्स के जो वाइब्रेशंस है ये प्योर रहते हैं। उस समय उठकर अगर आप भ्रुकुटी के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे स्टार चमक रहा है, सितारा, उसको याद करते हो यहाँ पे, और सारे वर्ड से डिटैच, डिस्कनेक्ट हो जाते हो। कोई दोस्त याद नहीं आना चाहिए, कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी, कोई याद नहीं आना चाहिए। बस सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। आप स्व मीन्स आत्मा, सेल्फ। जब अपने आप को आप सारे वर्ड से डिटैच करोगे तब आप रियलाइज करोगे कि यहाँ ट्रिमेंडस पावर है आपके अंदर। अभी हम बाहर ढूंढ रहे हैं पीस एंड हैप्पीनेस को, हम व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं, हम वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं कि नई बाइक ले ली ऑटोमेटिक गियर से उसमें, या ऑटोमेटिक गियर वाली साइकिल ले ली, या ऑटोमेटिक गियर वाली कार ले ली, तो देखो मेरे लाइफ में बड़ी खुशी आ जाएगी, सुख आ जाएगा। तो हम जो डिजायर्स है, एंडलेस डिजायर्स, उसके पीछे भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे? और भागने के बाद एक डिजायर कंप्लीट हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, दूसरी डिजायर क्रिएट हो जाती है, वो भी फुलफिल हो जाती है। तो फाइनली आप हैप्पी बन रहे हैं या और ही दुखी बनते जा रहे हैं इसके पीछे भागते भागते? तो आत्मा की जो नॉलेज है और जो अभ्यास है उसका अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, 4 o'clock, half an hour daily. Start practicing for 6 months consistently without any gap. 6 महीने लगातार 180 days अगर आप रोज हाफ एन आवर अगर मेडिटेशन अभ्यास करते हो, पॉइंट ऑफ लाइट, मन में जो थॉट्स आ रहे उसके पीछे भागो मत, उसको डांट लगा दो, और आप यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट पे अपने मन के अनेक थॉट्स को एकाग्र करो। बिकॉज द सोल इज सिचुएटेड हियर, यू विल कम टू नो दैट देयर इज ट्रिमेंडस पावर और नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस। चेहरा खिला हुआ होगा आपका। घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स है, अपने दोस्तों के साथ कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, कॉलेज में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। एक ही थॉट, जितने आप ज्यादा थॉट्स करते हो उतनी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज होती है और एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है। समझ रहे? मल्टीपल थॉट्स रिड्यूस योर स्पिरिचुअल एनर्जी। आप एक ही पॉजिटिव थॉट्स लंबे समय तक करते हो तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। तो ये डिफरेंस है। दिस इज द कार।
कार का ड्राइवर, उसका भोजन अलग है और कार का भोजन अलग है। इन द सिमिलर मैनर soul is the driver of this body. The food of the body is different and food of the soul is different. So Bhagavad Gita says that जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, और बॉडी और सोल ये दोनों डिफरेंट है। और आत्मा जो है उसकी ओरिजिनल कंसेप्ट जो है, आत्मा का जो ओरिजिनल घर है जहां से आत्मा इस संसार में आई, इस धरती पे आई, तो इसको बोलते हैं हम मनुष्य लोक, कॉर्पोरियल वर्ल्ड। दिस इज द अर्थ प्लेनेट, कॉर्पोरियल वर्ल्ड। मुस्लिम जिसको कहते हैं आलमे नासूत, और जिसको हिंदू लोग बोलते हैं मनुष्य लोक। सो देयर आर 3 abodes, there are 3 worlds. The first one is the corporeal world called as alame nasut या मनुष्य लोक। यहाँ हम सारे मनुष्य रहते हैं, इंसान रहते हैं सारे। The second one is ये फरिश्तों की दुनिया बोलते हैं इसको, और जो ऊपर है उसको बोलते हैं 7वां आसमान। खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। और भगवत गीता में बोला है कि जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, इस ब्रह्मलोक का परम धाम का मैं रहने वाला हूं। तो ये जो मुस्लिम और हिंदुइज्म, इवन क्रिश्चियंस क्या मानते हैं, जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देता है। द सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। क्राइस्ट की उंगली हमेशा ऊपर रहती है। गुरु नानक जी बोलते हैं, जिन्होंने सिख धर्म एस्टेब्लिश किया, एक ओंकार निराकार निर्भय अकाल मूर्त। सुना है कभी? गुरु नानक सिख धर्म जिन्होंने स्टार्ट किया, पंजाब में सिख धर्म फैला हुआ है। तो ये सारे रिलीजन्स ये दिखाते हैं कि गॉड, अल्लाह, शिव, ईश्वर एक है। वो 7वें आसमान का रहने वाला है, वो अर्श का रहने वाला है, वो परम धाम या ब्रह्मलोक का रहने वाला है। और हम सभी रूहें या हम सारी सोल्स यहाँ की रहने वाली है। फिर हम अपने अपने टाइम पर इस वर्ल्ड लाइफ स्टेज पर, ये जो स्टेज है इसमें एक्टिंग करने के लिए हम अलग अलग एक्टर से हम इस पे आते हैं और एक्ट करते हैं। हम बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आ जाते हैं पूरी तरीके से। और जब हम बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आते हैं तो ऐसा समय आता है इस दुनिया में जब चारों युग जो है, 4 युग पता है आपको कौन से हैं? चारों युग, देयर आर 4 युगास। किसी को नहीं पता अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। आपने सुना नहीं कलयुग चल रहा है? ऐसे सुना। कलयुग के बाद क्या आएगा? 4 युग है। जैसे वाटर साइकिल होता है, जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, और जैसे ऋतु चक्र होता है, जैसे विंटर के बाद समर, समर के बाद रेनी सीजन, वैसे ही इस दुनिया में 4 युगों का ये साइकिल है। ये रिपीट होता रहता है साइकिल एज इट इज। द फर्स्ट वन इज सतयुग। सतयुग को बोलते हैं गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज, एंड कलयुग इज आयरन एज। दीज आर द 4 युगास। अभी हम कलयुग में बैठे हुए हैं, और जो कलयुग में जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद ज्यादा बढ़ जाता है, तब उस समय जो भगवान है इस धरती पे आना पड़ता है, और जो युग है कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन होके फिर से सतयुग आता है। सतयुग को हिंदू लोग बोलते हैं राम राज्य। ये जो राम राज्य का कंसेप्ट है, ये आइडियल नेशन का कंसेप्ट है। उसको और एक नाम है स्वर्ग या वैकुंठ, और मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं उसको? जन्नत। अगर जन्नत में जाना है तो अभी कहां पे? अभी जहन्नुम में। अगर राम राज्य में जाना है तो अभी रावण राज्य में। अभी दुनिया में रावण राज्य फैला हुआ है, तभी तो हम बोलते हैं कि राम राज्य में जाना है हमको, राम राज्य आएगा। अभी दुनिया में जहन्नुम है,
तभी तो हम बोलते हैं कि जन्नत आएगी, जन्नत में जाएंगे। तो ये कलयुग जो है, ये कलयुग के बाद जो युग का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद फिर से सतयुग आता है, गोल्डन एज। तो ये युगों का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, इसमें प्रेजेंटली अभी जो है वो घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है, वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है, हमारे अंदर भी वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है, एंगर, एग्रेसिवनेस, एंजाइटी, फियर, हमारे अंदर विल पावर इतनी ज्यादा नहीं है, सहन शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेंस इतनी ज्यादा नहीं है, तो सामना करने की शक्ति, पावर टू चैलेंज, पावर टू फेस द चैलेंजेस, कि जैसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उसको चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते, तो ये सारी पावर्स हमारी कमजोर हो चुकी है। जब ये सारी पावर्स कमजोर हो जाती है, तो भगवान को इस संसार में आकर स्पिरिचुअल नॉलेज देनी पड़ती है। स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अभी मुस्लिम स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये जो समय चल रहा है ये कयामत का समय है, और क्रिश्चियन स्कॉलर्स का ये कहना है कि जजमेंट डे नजदीक आने वाला है। अभी अमेरिका में वॉशिंगटन में एक क्लॉक तैयार किया है साइंटिस्ट ने, उस क्लॉक का नाम है डूम्सडे क्लॉक। सुना है आपने? डूम्सडे क्लॉक। ये डूम्सडे क्लॉक में उन्होंने एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन चल रहा है और जो न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है सभी कंट्रीज के पास, उसका सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच में सिविल वार्स, इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए उन्होंने एक क्लॉक सेट किया है, और उसमें उन्होंने बोला है सिर्फ 89 सेकंड्स बाकी है। 89 सेकंड्स मतलब ऐसे नहीं कि 89 सेकंड्स, इसका मतलब कुछ साल बाकी है बस डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कयामत आने में। तो आज दुनिया इस डिस्ट्रक्शन की कगार पे इसलिए खड़ी है क्योंकि उसका मूल कारण है हम आत्मा के ज्ञान को भूल गए, हम ईश्वर को भूल गए, सोल कॉन्शियसनेस भूल गए, और जो असली योग की डेफिनेशन है उसको भी भूल गए। योग का अर्थ क्या है? किसी को पता है योग क्या होता है? योग मीन्स व्हाट? योग मीन्स योगासन प्राणायाम को योग नहीं कहेंगे। जो रामदेव बाबा जो नेशनल टीवी चैनल में जो दिखाते हैं कि पेट हिलाकर दिखाते हैं, वो योगासन प्राणायाम है। लेकिन योग का अर्थ है कनेक्शन, यूनियन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल, दैट इज कॉल्ड एज योग। आत्मा का, रूह का परमात्मा से कनेक्शन, अल्लाह से कनेक्शन, या सुप्रीम अथॉरिटी से, सुप्रीम पावर से कनेक्शन, ये योग है। तो हम जब अपना कनेक्शन उस पावरफुल जनरेटर से जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर उसकी डिविनिटी, डिवाइन क्वालिटीज, उसके अंदर जो 100% नॉलेज है, उसके अंदर जो 100% प्यार का सागर है, वो सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती है। तो आपने हिंदुइज्म में एक बात सुनी रहेगी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सुना है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, ये त्रिदेव है। इनके द्वारा क्रिएशन, सृष्टि का क्रिएशन मतलब निर्माण, और डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। तो शंकर के द्वारा विनाश, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, और जो न्यू वर्ल्ड आएगा जिसको बोलते हैं सतयुग, ये न्यू वर्ल्ड की जो पालना है वो विष्णु के द्वारा। इसी को हम दूसरे रिलीजन्स में अगर इनके नाम देखेंगे तो ब्रह्मा को क्रिश्चियनिटी में बोलते गैब्राइल, गॉड गैब्राइल, और मुस्लिम में बोलते जिब्राइल, और अगर विष्णु को देखेंगे, विष्णु को बोलते सस्टेनेंस, पालन करता। तो उसके लिए, ब्रह्मा के लिए और एक नाम है मुस्लिम में अल खालिक, विष्णु के लिए बोला है अल मुकित, और जो क्रिश्चियंस है वो बोलते हैं माइकल, और इस्लाम में इसका वर्णन है मिकाइल करके। फिर शंकर के लिए बोलते हैं अल मुमित। किसी ने सुना है आपने ये बात कभी? आप इसको गूगल में सर्च कीजिए और स्टडी कीजिए थोड़ा सा। और क्रिश्चियंस लोग इसको बोलते हैं इस्राफिल, और मुस्लिम लोग बोलते हैं अजराइल। तो ये जो एक ही पर्सनैलिटी है उसको अलग अलग नाम दे दिए। समझ में आ रहा है? और सब लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि हमारा देवता ये, हमारा गॉड ये, हमारा गॉड ये।
ये एक ही पर्सनैलिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हम बोलते हैं अल खालिक अल मुक़ीत अल मुमीत, या उसको गैब्रियल माइकल इसराफिल, जिब्राइल माइकल अजराइल, मिकाइल अजराइल, तो ये अलग अलग नामों से पुकारा है। तो जो यूनिवर्स का जो क्रिएशन है ये काम ब्रह्मा का है, और यूनिवर्स का जो डिस्ट्रक्शन है ये काम शंकर का है। इसलिए शंकर को बोलते हैं महाकाल। काल माना मृत्यु, महामृत्यु। अभी जैसे कोरोना की बीमारी आई, कोरोना चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन यूज किया है ना, बायोलॉजिकल वेपन यूज किया। कोरोना इज द बायोलॉजिकल वेपन ऑफ चाइना, और दुनिया में लाखों की मौत हो गई। तो ये क्या है, काल, काल मंडरा रहा था। लेकिन महाकाल, शंकर को महाकाल बोलते हैं। महाकाल मीन्स फाइनल विनाश, डिस्ट्रक्शन, महाप्रलय। आपने एक स्टोरी सुनी रहेगी, शिव शंकर भोलेनाथ को एक तीसरा नेत्र है, थर्ड आई ऑफ विजडम उसको बोलते हैं। उसने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी सृष्टि में महाप्रलय आ गया, सारे संसार में महाप्रलय आ गया। सुना है आपने ये बात? तो ये जो बात है, जब भगवान शिव को हो, अल्लाह को हो, जब इस धरती पर अवतार लेते हैं कलयुग में, जब युग का ट्रांसफॉर्मेशन है, पापी कलयुग, इंप्योर कलयुग टू पावन सतयुग, या जन्नत बोलो या पैराडाइज बोलो उसको, या स्वर्ग बोलो, तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। और अभी जो प्रेजेंट समय चल रहा है, वर्तमान समय, उसमें परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। अभी अलग अलग धर्मों में इसकी मान्यताएं अलग अलग है। ब्रह्मा और जिब्राइल इज द एंजल ऑफ क्रिएशन। हम बोलते हैं कि ब्रह्मा ने क्रिएशन किया, वो कब किया क्रिएशन? ये सृष्टि जो है, ये साइकिल ऑफ वर्ल्ड साइकिल जो है, ये रिपीट होता रहता है। 5000 years before there was a end of Kali Yuga. Now again this cycle has been repeated. Again Kali Yuga has come. Again there is a end of Kali Yuga, and 5000 years cycle has been completed. उसके बाद फिर से सतयुग आएगा, फिर से गोल्डन एज आएगा। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है सारा का सारा, और ये साइकिल रिपीट होता है, उसी को हम ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। तो जो न्यू क्रिएशन होगा तो उसमें न्यू रिलीजन एस्टेब्लिश होगा। आज बहुत सारे अलग अलग रिलीजन है, ये सारे रिलीजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एक ही रिलीजन एस्टेब्लिश हो जाएगा। देयर विल बी वन किंगडम, देयर विल बी वन किंग, एंड देयर विल बी वन रिलीजन। इसके लिए बोलते हैं हम अभी भारत में क्या ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है आपको, सारे रिलीजन्स के लिए एक ही कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए होना चाहिए। वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो सारी दुनिया के लिए, सारा वर्ल्ड इज वन फैमिली। इसके लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक ही पद्धति होनी चाहिए। सो if there will be destruction of entire all the religions, all the opinions, all the traditions, then there will be one new religion, there will be new world, there will be permanent peace and happiness, there will be no sorrow, no miseries in the world. अभी ये ओल्ड वर्ल्ड ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्या? न्यू वर्ल्ड ऐसे ही आ जाएगा क्या? ऐसे ही नहीं आएगा। कोई भगवान आके जादू नहीं करता है, कोई चमत्कार नहीं करता है, वो आके टीचर बन के आता है। आपने एक आज से 15-20 साल पहले एक रैप सॉन्ग आया था कॉलोनियल कजिन्स का, आपने किसी ने सुना है? कॉलोनियल कजिन्स का नाम सुना है? उनके रैप पॉप सॉन्ग्स है कॉलोनियल कजिन्स। उसमें एक सॉन्ग आया था, कम बैक इज अल्लाह, कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। तो भगवान को स्वयं टीचर बन के आना पड़ता है इस संसार में, और जब वो टीचर बन के आता है तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है। और जब स्पिरिचुअल नॉलेज देता है तब हमारी जो सोल है, रूह है, वो प्योर बन जाती है। उसके अंदर जो निगेटिविटी है वो भाग जाती है। आज हमारे रूह के अंदर क्या क्या निगेटिविटीज है, किसी को पता है? There are three enemies of the soul. There are three enemies of the soul, or there are three demons in the soul. 3 प्रकार के राक्षस हमारे आत्मा के अंदर है।
किसी को पता है कौन से? भगवत गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना। These are the three enemies of the soul who are opening the gates of the hell। नरक के द्वार खोलते हैं, दोजक के दरवाजा खोलते हैं। वो कौन है? पहला है लस्ट, काम, दूसरा है क्रोध माना एंगर, एंड द थर्ड वन इज ग्रीड, लोभ, लालच। समझ में आ रहा है? पहला क्या बताया मैंने? लस्ट, काम, काम वासना, हवस, दूसरा है क्रोध, एंगर, और तीसरा है अटैचमेंट, सॉरी ग्रीड या लोभ। तो ये जो तीन है, ये तीन सबसे बड़े डेमन्स है। और चौथा डेमन है अटैचमेंट, जिसको बोलते हैं मोह, अटैचमेंट, लगाव। और पांचवा है इगोइज्म, गुरूर, अहंकार। तो ये 5 डेमन्स है। जब हम स्पिरिचुअल एजुकेशन लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो निगेटिविटीज भाग जाती है। ये 5 डेमन्स हमारे अंदर से भाग जाते हैं। आज सभी के अंदर ये डेमन्स प्रेजेंट है। किसी के अंदर परसेंटेज कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। और उसकी वजह से आज दुनिया में बहुत सारे क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है? आज के जो स्टूडेंट्स है उनको इंटरनेट पे क्या परोसा जा रहा है? ब्लू फिल्म, पोर्नोग्राफी, गंदी चीजें, सेक्सुअलिटी, वायलेंस, क्राइम, ये चीजें परोसी जा रही है। जब ये चीजें परोसेंगे तो बुद्धि में सारी गंदगी आ जाएगी। बुद्धि में गंदगी आ जाएगी तो गवर्नमेंट क्यों एक्सपेक्ट कर रही है कि ये लोग क्राइम नहीं करेंगे? करेंगे। आप पहले ये चीजों को बंद कर दो, और आप चाहे तो, गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में ये सारा इंटरनेट से हटा सकते हैं, ये सारा स्टफ हटा सकते हैं। अभी वो उसका केस हो गया ना, क्या नाम उसका, रणवीर अलाहाबादिया का, सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया और उनका यूट्यूब चैनल वगैरह सारा बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो समाज में कॉमेडी के नाम पे जो गंदगी फैलाई जा रही है, जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है, उसकी वजह से माइंड एंड इंटेलेक्ट में गंदी चीजें घुस रही है। उसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी कमजोर हो रही है। तो मैंने आपको ये साइकिल बताया था, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, एंड द लास्ट पीरियड joining the Kalyug and Satyug. The period joining the Kalyug and Satyug is called as Sangam Yug. That is called as confluence age. This is the period of 100 years. और ये 100 साल के समय में जो परमात्मा है या ईश्वर है, या वो स्वयं इस धरती पर अवतार लेता है और ट्रांसफॉर्मेशन करता है। क्योंकि आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर इस दुनिया में मोरल वैल्यूज को फिर से एस्टेब्लिश कर सकता है क्या? मोरल वैल्यूज जो डिग्रेड हो रहे हैं, जो आध्यात्मिकता जो नीचे चली जा रही है, इसको फिर से एस्टेब्लिश कर सकता है क्या आज का पॉलिटिकल लीडर? नहीं कर सकता। तो गॉड को स्वयं आना पड़ेगा, वही स्पिरिचुअल नॉलेज देगा, वही स्पिरिचुअल टीचिंग देगा, पढ़ाई पढ़ाएगा, और उसके बाद दुनिया, नई दुनिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे एक मकान है और मकान का मालिक क्या करता है कि देखता है कि मकान में अगर दीवारें क्रैक हो रही है और छत में से पानी टपक रहा है बारिश में, तो मकान का मालिक क्या करेगा? रिपेयरिंग करेगा, मरम्मत। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है। बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद अगर मकान नहीं सुधर रहा है तो मकान का मालिक क्या डिसीजन लेता है? तोड़कर नया मकान बांध के तैयार कर देंगे। वैसे ही ये जो वर्ल्ड इज वन फैमिली, आज इस दुनिया में जब द्वापर युग और कलयुग में पाप बढ़ते चले गए, तो मरम्मत करने के लिए महात्मा बुद्ध आए। गौतम बुद्ध का नाम जानते हो? महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध रिलीजन को एस्टेब्लिश किया। महात्मा बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए। आज से 2000 इयर्स पहले जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, गुरु नानक आए, उसके बाद आदि शंकराचार्य आए, तुलसीदास, कबीरदास, बहुत सारे संत आए, कबीर आए। लेकिन मरम्मत करने के बावजूद ये दुनिया सुधर गई क्या?
ये दुनिया में से पाप खत्म हो गए क्या? क्या हुआ? हाँ जी, दुनिया में पाप और ही बढ़ते चले गए। तब जाके भगवान क्या करता है, पुराना मकान तोड़ देता है और नया मकान तैयार कर देता है। जो पुराना मकान तोड़ना है उसको बोलते हैं विनाश, डिस्ट्रक्शन, कयामत, जजमेंट डे। और जो नया मकान बनाना है उसको बोलते हैं सतयुग, राम राज्य, जन्नत, पैराडाइज। तो वर्ल्ड वॉर 3 के जो आसार है अभी, ये विनाश की तरफ हमको लेके जाएंगे। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो न्यूक्लियर वार होगा, और न्यूक्लियर वार होगा तो एटम बॉम्ब, एटॉमिक मिसाइल्स का एक्सप्लोजन होगा। अगर एटॉमिक मिसाइल्स का एक्सप्लोजन होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? उससे जो ग्लेशियर्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, बर्फ के पहाड़ है, वो पिघल जाएंगे। उससे क्या होगा? जो ओशंस का वाटर लेवल है, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? जितने भी आइलैंड्स है, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, जितने भी आइलैंड्स है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे आइलैंड्स समुद्र के अंदर समा जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, और दुनिया में महाप्रलय, विनाश आ जाएगा। 2004 में जब इस्लामाबाद में भूकंप हुआ था, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, तो एक टीवी रिपोर्टर था, उसने एक आदमी को क्वेश्चन पूछा कि इतनी सारी लाशें गिरी हुई है, आपका क्या ओपिनियन है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला का लास्ट वार्निंग है मनुष्य को, अभी भी सुधर जा, नहीं तो सारी दुनिया में कयामत आ जाएगी। तो वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर वॉर अगर हो गया तो सृष्टि में कैसे विनाश होगा? नेचुरल कैलामिटीज होगी, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, सुनामी। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी। बॉम्बे, हैदराबाद, दिल्ली, अमेरिका, अभी कैलिफोर्निया का क्या हाल हुआ था? नासा रिपोर्ट आने वाले 6-8 सालों में बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम, ये जो सिटीज है, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल रहे हैं। तो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स के चांसेस है और न्यूक्लियर वार के चांसेस है, ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जब दुनिया में विनाश होता है, आपने किसी ने नूह का नाम सुना है? नूह सुना है? और बाइबल में उसको बोलते हैं नो, और हिंदूज में बोलते हैं मनु, मनु और शत्रुपा। तो जब बोलते हैं कि जब महाप्रलय आ गया तो मनु और शत्रुपा ने क्या किया? एक नाव तैयार की, एक घोड़ी तैयार की। उस नाव में सृष्टि के जो 108 सीड्स है, बीज है, इनको चुन लिया और वो सारे बच गए और सारी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो गया। मुस्लिम्स में बोलते हैं कि नूह या नो जो है, क्रिश्चियंस में बोलते हैं, उन्होंने एक नाव तैयार कर ली और बाकी के सारे लोग बोलते हैं अरे ये पागल लोग हैं सब कुछ। और जो उस नाव का सहारा लेते हैं, उसका सपोर्ट लेते हैं, वो सारे बच जाते हैं। तो ये बचना मतलब क्या है? जो अपनी सोल का प्यूरिफिकेशन करते हैं। अभी हम अगर अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, अपने अंदर की निगेटिविटी को हटाने के लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन ले, रोज अगर पॉजिटिव थॉट्स, अगर अच्छी चीजें आप सुनोगे, देखोगे, तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो जो मनुष्य अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, अपनी रूह को, अपनी सोल को प्यूरिफाई करेंगे, वही गोल्डन एज में या जन्नत में जाएंगे। शास्त्रों में बोला है, शंकर जो है, शंकर चाप जहाज जय चढ़ उतरे पार नर गुण सकल संसार। उसका शरीर ही एक जहाज है जो उसका आसरा लेता है, उसका आश्रय लेता है, शेल्टर लेता है,
बाकी सारा संसार खत्म हो जाता है। तो भगवत गीता में एक श्लोक आया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये जितने भी रिलीजन है इनको छोड़ दो और एक ईश्वर को या भगवान को शरण में आ जाओ, बाकी सभी रिलीजन को छोड़ दो, सभी जितने भी ये रिलीजन है। तो ये राजयोग की जो शिक्षा है ये भगवान खुद आकर दे रहा है। दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन द चेयर and he is doing the meditation and he is remembering God, making connection of his soul with the God। और तब क्या हो रही है, निगेटिविटी जो है उसके अंदर की वो भाग रही है। एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, लस्ट, एगो, ये सारी भाग रहे। और ये जिस आसन पे बैठा है ये 4 पिलर्स के ऊपर है। ब्रह्मचर्य मीन्स सेलिबसी, इसको मुस्लिम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शजत सदाए हक। उसके बाद ब्रह्मचर्य का अर्थ है प्यूरिटी ऑफ माइंड स्पीच। ब्रह्मचर्य का अर्थ है प्यूरिटी ऑफ माइंड स्पीच एंड कर्म एक्शंस, जिसको आप और एक तरीके से समझ सकते हो सेल्फ कंट्रोल। जो हमारे बॉडी के जो सेंसेस है, सेंसुअल ऑर्गन से, उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो ब्रह्मचर्य है। आपके मन के ऊपर जो कंट्रोल है, क्योंकि आप अपने मन के गुलाम हो चुके हैं। मन आपने को चाहे वैसे चलाता है। हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं, अपने मन के गुलाम हैं। हमारे ये जो मन के अंदर जो 5 डेमन है उसके गुलाम है हम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो हम असली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो फर्स्ट वन इज द ब्रह्मचर्य। When you have to increase the spiritual energy, spiritual health, at that time you have to follow these things in your life. Second one is the pure food. जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। As a food, so the mind. And third one is the divine qualities. Divine qualities में कौन से qualities है? Non-violence. किसी को अगर हम गाली भी दे रहे हैं, abuse कर रहे हैं, तो भी वो violence है, नॉन वायलेंस। सेकंड डिवाइन क्वालिटी क्या है बताइए? डिवाइन क्वालिटीज कौन से होते हैं? कंपैशन, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, कंपैशन टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग, दिस इज आल्सो डिवाइन क्वालिटी। चैरिटी, दैट इज आल्सो डिवाइन क्वालिटी। फियरलेसनेस, दैट इज आल्सो डिवाइन क्वालिटी। फ्रीडम फ्रॉम द एंगर, दैट इज आल्सो डिवाइन क्वालिटी। कितने लोगों को गुस्सा आता है छोटी छोटी बात पे, बहुत ज्यादा, और अपने घर के बर्तन फेंकना चालू कर देते हैं, जोर जोर से फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं। किसी को गुस्सा नहीं आता है इधर? बहुत आता है ना। तो राजयोग की प्रैक्टिस करो आप। इसका 7 डेज का कोर्स रहता है, वो करो, इसको रोज प्रैक्टिस करो, लाइफ में सारी चीजें कम हो जाएगी। एंड फोर्थ वन इज द स्पिरिचुअल एजुकेशन। सो दिस इज द 4 पिलर्स ऑफ राजयोग। You have to follow that in your life, then you can overcome the tension, depression, stress, anxiety, overthinking, रात को नींद नहीं आना, multiple thoughts, suicidal thoughts, ये सारी जो प्रॉब्लम चल रही है आज। आपने राजस्थान में कोटा का नाम सुना है क्या? कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन, उसमें 4 सालों में लास्ट 4 इयर्स में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। ये न्यूज के रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और आज जो माहौल चल रहा है, लोगों को स्पिरिचुअलिटी की बहुत जरूरत है, तभी हम बुराइयों को जीत सकते हैं। और जो नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड आने वाली है, उसमें ईश्वर की याद में हम अगर अपनी आत्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे तो उससे आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, प्यूरिटी, टॉलरेंस, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, मधुरता, प्रेम, आनंद, निर्भयता, पेशेंस, ये सारी ओरिजिनल क्वालिटीज हमारी वापस आ जाएगी। जो क्वालिटीज हमारी गायब हो चुकी है, समझ रहे हैं? ये आपको ये पिक्चर जो इधर रखा हुआ है, ये सही लिखा है इसमें? आपने ये वर्ड सुने? हाँ? तो हमारी रूह की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है ये गायब हो चुकी है और उसकी वजह से आज हम दुखी है। आप इस चीज को जानते हो, जब वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा
और जो न्यू वर्ल्ड शुरुआत हो जाएगा, ये जो न्यू वर्ल्ड शुरुआत हो जाएगा, देयर विल बी फर्स्ट कपल। अरे एक बात सुनो सुनो, जब न्यू वर्ल्ड स्टार्ट हो जाएगा, देयर विल बी वन मैन एंड वन वुमन, फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन। उनका नाम क्या रहेगा, कौन बताएगा? एडम और ईव बोला इन्होंने, आप क्या बोल रहे हो? आदम और हवा। जैनिज्म में बोला है आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदुइज्म में बोला है आदिदेव आदिदेवी शंकर पार्वती, या आदिदेव आदिदेवी शंकर और पार्वती। तो ये सब रिलीजन्स में एक ही पर्सनैलिटी है, लेकिन उसको नाम अलग अलग दे दिए। सिमिलरिटीज है सारी चीजें। तो आप अगर इसको स्टडी करोगे, इस नॉलेज को एक्वायर करोगे, स्पिरिचुअलिटी, जैसे हिंदुइज्म में 3 देवियां है, पार्वती जिसको बोलते दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। वैसे ही इस्लाम में 3 देवियों की मान्यता है, और उसका इस्लाम में पार्वती जो जगदम्बा है उसको बोलते हैं अल-लत, लक्ष्मी को अल-उज़्ज़ा और सरस्वती को मनत। ये 3 देवियां है। तो ये फीमेल डिटीज जो हिंदुइज्म में जिनकी मान्यता है, उसकी सिमिलर मान्यता है इस्लाम में। आप अगर डिटेल में डीप स्टडी करोगे तो ये सारी सिमिलरिटीज आपको पता चल जाएगी। इवन प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर आने से पहले जो फर्स्ट प्रोफेट थे अब्राहम, इब्राहिम जिनको बोलते, तो उस समय मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिपिंग को मान्यता थी, और आइडल्स की वर्शिपिंग होती थी। बाद में इन चीजों में चेंजेस आ गए। देयर वाज वर्शिपिंग ऑफ द आइडल्स एंड स्पिरिट्स, प्लांट्स, रॉक्स एंड वाटर, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। उसमें बोलते हैं जो गॉड है उसको हुबल बोलते थे। सो देयर आर मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन दीज रिलीजन्स, और सब धर्मों का जो पिता है या सब धर्मों का जो मालिक है वो एक ही है, वो है अल्लाह या शिव या ईश्वर। सभी रिलीजन्स में उसको अलग अलग तरीके से वर्शिप करते हैं, या अलग अलग तरीके से उसकी इबादत करते हैं, या अलग अलग तरीके से उसकी उपासना करते हैं, लेकिन वो एक ही गॉड है। तो उसको अलग अलग नाम दे दिए। तो लास्ट में आपको एक कंक्लूडिंग एक बात बता रहा हूं कि जो बड़े बड़े प्रेडिक्टर्स हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की है, उसमें से जो फेमस प्रेडिक्टर है उसका नाम है नॉस्ट्राडेमस। नॉस्ट्राडेमस का नाम किसी ने सुना है क्या? उनकी प्रेडिक्शन बहुत पॉपुलर है। उसके बाद कीरो, कीट, एंडरसन, जुल्बन, गोपीनाथ शास्त्री, भविष्य मालिका, कल की पुराण, ये अलग अलग प्रेडिक्शन है। उसमें कॉमन प्रेडिक्शन ये है कि 21st सेंचुरी में नॉर्दर्न इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा, वो आत्मा परमात्मा के ऐसी नॉलेज देगा और ऐसा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन इस भारत के अंदर लाएगा, और भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक मतांतर और अनेक पुरानी ट्रेडिशंस, परंपराएं, उसका विनाश हो जाएगा, और फिर से नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड, जन्नत या राम राज्य आ जाएगा। दुनिया में से रावण राज्य का और जहन्नुम का खलास हो जाएगा, और एक ईश्वर का राज्य होगा इस दुनिया में। तो ये कंसेप्ट है, और अभी ईश्वर का कार्य स्वयं चल रहा है। आप ये स्पिरिचुअल नॉलेज को फॉलो करो आपके स्टडीज के साथ साथ। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Conclude the topic now. Have you understood today's topic? How was it? Enjoyed? Learned so many new things? And apart from this one-day presentation, there is 7 days course. Whoever is interested, as have been taken this all the contact numbers details, so we'll get in touch with you. And who is interested, they can take the 7 days free course. Okay, daily 1 hour duration. And we all have our YouTube and Instagram, WhatsApp, and also Facebook. All kind of information is also provided back of the book. You can refer them and you can get in touch with us. And is there any queries or questions to be asked? You can ask about life. Any questions? None of you? No one?
Yeah, there is the spiritual revolution by name. So you can log on, and we also as we have taken your information, we'll add your name and the details in one group, and we keep on uploading all the related spiritual things, so you can imbibe in your personal life. Okay? All right. Thank you then. Thank you, sir.